Welcome back, everybody. This is our third class in JEE Mains previous year's questions for class 11th. Chapter is units and measurements. Previously, we have made two videos, and in those two videos, we covered up to question number 41, I think, or 42. And in this video, we will move forward, and hopefully, in one more video, this chapter will be finished, and up to 2020 we will be covered for IIT JEE mains questions. And for after that we will start again for second chapter, then third and fourth, and so on. And if you like this series and our solutions, then you can like this video, share this video, and subscribe to our channel. If you have any suggestions, then you can put them in the comment section. And if you want to support us, then you can scan these QR codes and donate whatever possible to you. This amount help us to buy new books, new question papers, and also better computer hardware. And if you are viewing this video out of India and you cannot use UPI, then there is a Patreon link in the description. Then you can also use that link. So with this, let's start today's video and today's questions. We have completed up to 42, I think. So we have completed up to question number 41. Now we will move to question number 42. So here it is given. There is a screw gauge and pitch is given 0.1 centimeter. So pitch is 0.1 centimeter. Let me make it slightly thicker so that it will be visible easily. And number of divisions are 50. Now from this we can find out that least count is equal to pitch by number of divisions on circular scale. And on circular scale we have 50 divisions, so least count will be 0.1 centimeter by 50, or we can write it as like this: 0.1 into 10 to the power minus 2 divided by 50. Or further we can write it like 1 into 10 to the power minus 3 divided by 50, and it will be 100 into 10 to the power minus 5 by 50. Why I'm doing this? It will be you will able to understand it slightly after, and it will be 2 into 10 to the power minus 5 meter. So value of least count is 2 into 10 to the power 5 minus 5 meter. Now moving forward, the thickness of the object measured is should be correctly recorded as. So now हमें ये पता है that जब भी हम स्क्रू गेज की रीडिंग निकालेंगे, it will be y main scale reading plus circular into least count. ओके, तो जो हमारे पास ये सभी रीडिंग्स गिवन है, इनमें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो दैट जो मेन स्केल है वो एटलीस्ट 2 है. जो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी वो एटलीस्ट 2 तो होगी ही होगी, बिकॉज 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास वैल्यू है, और कुछ भी हो सकती है. उसके बाद हमारी आती है लीस्ट काउंट की वैल्यू, सर्कुलर इनटू लीस्ट काउंट. और आप देख पा रहे हो जो हमारा लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट विच वी आर यूजिंग हियर, इट इज 2 into 10 to the power minus 5 मीटर. और आप इसको यू कैन राइट इट लाइक दिस: 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 3, or it will be 0.02 into 10 to the power minus 3 meter. Or we can write it like also like this: 0.02 into 10 to the power minus 2 meter, or 0.02
0.02 सेंटीमीटर। सो ये हमारा लीस्ट काउंट है। नाउ सपोज यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे कोई वैल्यू आती है आपके पास 51 या 52 या 53। जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, जब आप अज्यूम करेंगे कि सपोज 51 आई है, जब आप उस 51 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, बिकॉज 2 इवन है। अगर आप किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज इवन रहेगा। तो जो आपके लीस्ट काउंट से यहाँ पे कोई भी वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और अगर आप इन वैल्यूज को देखते हो तो यहाँ पे 1 to 1 इज ओड वैल्यू, 1 to 5 इज ओड वैल्यू, 1 to 3 इज ओड वैल्यू। तो विद दिस लिस्ट काउंट आपको एक इवन वैल्यू ही मिल सकती है, बिकॉज जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे 50 डिविजन्स हैं, तो जो आपकी 50 डिविजन्स में से उसमें से आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू 50 कुछ आ सकता है, कोई भी रीडिंग आ सकती है, और उसको आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे बाय डिफॉल्ट। तो जब भी आप उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, इवन आंसर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, जो कि इन 3 रीडिंग्स में नहीं है। आपके पास ओनली ये पॉसिबल आंसर है बिकॉज ये इवन है फ्रॉम डेसिमल पॉइंट्स। सो दैट्स व्हाई जो इसका एक पॉसिबल आंसर बनता है, जो यहां से रिकॉर्ड की जा सकती है, वो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 मीटर। सो लीस्ट काउंट गिवन है 1 मिलीमीटर। सो 1 इंटू 10⁻³ और इसका आप मीटर में लिख सकते हैं ऐसे। वर्नियर स्केल डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। वर्नियर स्केल के अंदर 10 डिविजन्स हैं और कंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो वहां से हम लिस्ट काउंट भी निकाल सकते थे। नाउ व्हेन द जॉज आर टचिंग ईच अदर, 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद द मेन स्केल ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लाइंग। देखिए यहाँ पे गिवन है कि 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड्स। तो जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है मेन स्केल की वैल्यू प्लस वर्नियर इनटू लीस्ट काउंट होता है हमारे पास आंसर। तो जो वर्नियर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। जो वर्नियर की डिवीजन है वो 7th है और लीस्ट काउंट हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी 1 इंटू 10⁻³ तो इतनी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। नाउ जब हम इससे आगे बढ़ेंगे now it is mentioned that zero of vernier scale is lying right side of main scale। तो जो आपकी सपोज कीजिए ये मेन स्केल है एंड दिस इज इट्स जीरो, ये मेन स्केल की जीरो है, तो वर्नियर स्केल की जीरो इसके राइट में है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो वर्नियर स्केल की जीरो यहाँ पे है। मींस आपने कुछ वैल्यू को एक्स्ट्रा मेजर किया है, आपने कुछ एक्स्ट्रा मेजर किया है, तो आपका जो जीरो एरर है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर। और जो जीरो एरर है इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, जीरो एरर को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमने ये सेटअप कर लिया कि हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो एरर को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एंड हमने वर्नियर स्केल की डिवीजन देख ली कि 7th डिवीजन है, और एक जो लीस्ट काउंट है ये हमने रोंगली मेंशन कर दिया, ये जो लीस्ट काउंट है ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। हमें जो यहाँ पे ये लीस्ट काउंट यूज होता है ये वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट यूज होता है। सो वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए हम ये नीचे वाला डाटा यूज करेंगे। It the vernier scale divided into 10 division and coincide with 9 division of main scale। So we know कि जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल के लिए वो होता है 1 MSD minus 1 VSD, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। और जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट यानी कि मेन स्केल की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सो हमें गिवन है 10 of vernier scale divisions equal to 9 of main scale division, और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट 1 of vernier scale is 9 MSD by 10
1 वर्नियर स्केल इज 9 MSD by 10, तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर के लिए 1 minus 9 by 10 of main scale, and it will be 1 by 10 of main scale. एंड जो हमारी मेन स्केल है, मेन स्केल की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 1 mm. मेन स्केल की वैल्यू क्या है, 1 mm है, तो वर्नियर स्केल के लिए लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 mm, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर. सो ये आपका मेन स्केल के लिए लिस्ट काउंट है और ये वर्नियर स्केल के लिए लिस्ट काउंट है. नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. आगे मेंशन है व्हेन दिस वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ द सिलेंडर, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज बिटवीन 3.1 एंड 3.2. मींस जो वर्नियर स्केल की जीरो है वो 3.1 और 3.2 के बीच में कहीं पे है. तो जब आपके पास कोई ऐसी रीडिंग हो जहाँ पे जो जीरो है वो कंफ्यूजिंग में हो, मींस पता नहीं है कि 3.1 और 3.2 के बीच में कहाँ पे है, तो आप लोअर वैल्यू को मेन स्केल लेते हो. तो यहाँ पे जो आपकी मेन स्केल होगी that will be 3.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद का जो भी पार्ट है उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे और उसका आंसर आएगा वर्नियर से. सो इट इज मेंशन कि फोर्थ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन है वर्नियर की जो कोइंसाइड होती है. पहले 7th गिवन है, और ये 7th किसके लिए है, जीरो एरर के लिए है. और जो जीरो एरर यहाँ पे हो जाएगा, हम कैलकुलेट करना भूल गए, जीरो एरर विल बी जो कंसाइड करती है 7th डिवीजन कंसाइड करती है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इट विल बी 1 × 10⁻⁻⁴. सो 7 × 10⁻⁻⁴ मीटर. ये हो गया जीरो एरर. नाउ जब हम मेजरमेंट पे आ रहे हैं, मेजरमेंट के टाइम पे मेन स्केल की वैल्यू 3.1 सेंटीमीटर है, और जो पॉइंट कंसाइड कर रहा है, जो वर्नियर स्केल कंसाइड कर रही है, वो फोर्थ कंसाइड कर रही है. सो जो मेन स्केल का लिए आपका फाइनल आंसर आएगा, इट विल बी 3.1 प्लस फोर्थ कंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, दैट विल बी 1 × 10⁻⁻⁴, माइनस क्या आता है, जीरो एरर, बिकॉज जीरो एरर को आप ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हो. सो आवर आंसर विल बी 3.1 प्लस 4 × 10⁻⁻⁴, माइनस जीरो एरर इज 7 × 10⁻⁻⁴. सो विद दिस, और ये सभी किस में है, ये सभी मीटर्स में है, ये दोनों मीटर्स में है, और ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते हैं सो दैट हम कन्वर्ट करें इसको बाद में. सो 3.1 सेंटीमीटर माइनस 3 × 10⁻⁻⁴, ये अभी मीटर में. इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बिकॉज हमारा आंसर सेंटीमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो इट विल बी 3.1 सेंटीमीटर माइनस, इसको आप लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻² × 10⁻⁻² मीटर. हमने इसको -2 को स्प्लिट कर लिया, और इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मीटर को आप अगर सेंटीमीटर से आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हो. सो विद दिस ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आवर आंसर विल बी 3.1 सेंटीमीटर इंटू 3 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर. अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, आपने मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया. So it will be 3.1 centimeter minus 0.03 centimeter, and answer will be 3.07 centimeter. So let me repeat the whole process again so that आपको confusion ना हो. क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट गिवन है हमें, दैट इज 1 mm. सो हमने यहाँ पे मेन स्केल का लिस्ट काउंट लिख लिया 1 mm, और इस साथ में ये मेंशन है कि वर्नियर स्केल है जो उसकी 10 डिवीजन 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से क्या करती है, बैलेंस होती हैं, इक्वल है. 10 ऑफ वर्नियर इक्वल टू 9 ऑफ मेन. सो 10 ऑफ वर्नियर इज 9 ऑफ मेन, तो यहाँ से 1 वर्नियर आ जाएगा 9 मेन बाय 10,
और जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल के लिए, इट इज 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की वैल्यू है 9/10 मेन स्केल, मेन स्केल को हमने कॉमन ले लिया, सो इट इज 1/10 मेन स्केल। मेन स्केल की वैल्यू है 1 mm, तो हमने 1 mm को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 mm आ जाएगा, और इसको आप मीटर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद जब हम जीरो एरर पे आते हैं तो ये मेंशन्ड है कि 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ मेन स्केल। अगर ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है तो वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल जीरो के राइट में है, मींस आपने मेजरमेंट एक्स्ट्रा की है और एक्स्ट्रा मेजरमेंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मींस यहाँ पे जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव एरर है और जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट ही किया जाता है बाय डिफॉल्ट। सो जीरो एरर हो जाएगा जो हमारी वर्नियर स्केल की कंसाइड हुआ था, दैट वो 7th पे कंसाइड हुआ था इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, जो कि हमने ये निकाला था 0.1 mm। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो 7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। नाउ कमिंग टू मेन रीडिंग। मेन रीडिंग में ये बोला गया है कि वर्नियर स्केल की जीरो 3.1 और 3.2 के बीच में है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, अपर वैल्यू को इग्नोर करना है, जो लोअर वैल्यू है 3.1 उसको आप मेन स्केल मान के चलोगे, तो मेन स्केल इज 3.1 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे 4th डिवीजन कंसाइड होती है, सो 4 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻4 माइनस ऑफ जीरो एरर, तो जीरो एरर इज 7 इंटू 10⁻⁻4। और अब ये दोनों मीटर में, आप इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3.07। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्गर है एज पर कैलकुलेशंस, बट आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो if this screw on a screw gauge is given 6 rotation, so रोटेशन कितनी गई है, 6 रोटेशन गिवन है, रोटेशन 6 की गई है, 3 mm मूव करता है, तो 6 रोटेशन में 3 mm मूव करता है, तो 1 रोटेशन में कितना करेगा, 3/6 mm और हाफ mm। और जो 1 रोटेशन की मूवमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, पिच। सो पिच इज 1/2 mm। और यहाँ पे बोला गया कि इसके अंदर 50 डिवीजन है, सो नंबर ऑफ डिवीजन आर 50। तो हमें लीस्ट काउंट बताना है, तो लीस्ट काउंट इज पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सो पिच इज हाफ mm और 0.5 इंटू 10⁻⁻, और वी कैन, बिकॉज आंसर mm में है तो हम आंसर mm में ही रखते हैं, mm बाय 50। सो इट विल बी 5/500 mm और 1/100 और 0.01 mm। सो 0.01, यहाँ पे देखिए जो mm में है वो 0.001 है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक और जीरो ऐड हो जाएगी, सो 0.01 सेंटीमीटर, एंड ये ऑप्शन गिवन है, सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। So, 4 set of measurement of physical quantities are given below. Which of the following option is correct? So, आपको क्या करना है, इन सभी को आपको ऐड करना होगा, और जब आप इन सभी को ऐड करोगे तब आपको वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ये ऑप्शंस हैं आपके पास, नाउ A1, A2, A3, A4 एंड B1, B2, B3, B4, 1C1, C2, C3। सो जस्ट ये क्या है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तब भी आप इनको देख पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे आपको तीनों टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। सो
इसको जल्दी अगर आप इसको फास्ट सोल्व करना चाहते हैं तो आप ये देख पाओगे, आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो A2 B2 C2 को ऐड किया गया है, A2 A3 B3 C3 को ऐड किया गया, मींस इनको हम ऐसे नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, इनको इसी वे में ऐड किया गया है। तो अगर आप इन A1 A2 A3 को ऐड करते हो, मींस पहले A1 B1 और C1 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 280.6। जब A2 B2 C2 को ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 280.7, और A3 B3 C3 के लिए भी आपको 280.7 मिलेगा, एंड A4 B4 C4 के लिए आपको मिलेगा 281। सो जो A4 B4 C4 है वो सबसे ज्यादा होगा, दैट ये सबसे ज्यादा होगा, एंड जो आपके 3 और 2 हैं वो इक्वल होंगे, 3 2 इक्वल, और 1 सबसे कम होगा। तो हम इसमें ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, बिकॉज A2 B2 C3 ये सब इक्वल है। सो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं। सो a simple pendulum is being used to determine the value of gravitational acceleration g at a certain place. The length of the pendulum is 25 centimeter. Stopwatch with one resolution. Stopwatch का resolution कितना है? 1 second, यानी कि resolution का मीन्स होता है पॉसिबल एरर। तो स्टॉपवॉच से आप टाइम मेजर करोगे तो टाइम के अंदर 1 सेकंड का एरर पॉसिबल है, एंड टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस। अब यहाँ पे 40 ऑसिलेशंस लिए गए और फिर टाइम मेजर किया गया। तो जब आप 40 ऑसिलेशंस ले रहे हो तो जो आपका एरर है वो भी 40 ऑसिलेशंस में डिवाइड हो जाएगा। सो जो आपका एक्चुअल डेल्टा टी होगा दैट विल बी 1/40, एंड 40 ऑसिलेशंस के लिए टाइम कितना है? 50 सेकेंड। सो फॉर 40 ऑसिलेशन, इसको हम कैपिटल टी लिख देते हैं। 40 ऑसिलेशंस के लिए टाइम 50 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम हो जाएगा 50/40 सेकेंड। मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दैट यहाँ पे ये मेंशन है कि एक स्टॉपवॉच हमने यूज की जिसका एरर 1 सेकंड का है, बट वो 1 सेकंड जब आप एरर ले रहे हो तो साथ में ये भी मेंशन है कि 40 ऑसिलेशंस के लिए ले रहे हो, मींस आपने 40 टाइम्स ऑसिलेट करवाया और तब मेजरमेंट ली। तो जो आपका एरर था वो एक मेजरमेंट में ही आता है हमेशा, मीन्स अगर आप एक मेजरमेंट ले रहे हो तो उसके अंदर 1 सेकंड का एरर पॉसिबल है। यहाँ पे आपने ऐसे 40 ऑसिलेशंस ली तो उन 40 ऑसिलेशंस के अंदर ओनली 1 सेकंड का एरर होगा। तो ऑन एवरेज एक ऑसिलेशन के अंदर 1/40 सेकंड का एरर हो गया, और जो 40 ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड था वो 50 सेकंड है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया 50/40 सेकंड। नाउ length of the pendulum is given 25 centimeter. So L की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू नहीं गिवन। सो इसमें आपको अज्यूम करके ये चलना पड़ेगा बिकॉज सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर किया गया है। तो जो हम स्केल नॉर्मली यूज करते हैं, जो सेंटीमीटर का स्केल होता है हमारे पास, जो एक बेसिक स्केल होता है, तो उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर जो हमसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल एरर डेल्टा एल में 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है। सो नाउ जी की एक्यूरेसी निकालनी है। सो फॉर्मूला हम पहले आपको फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। टाइम पीरियड के लिए पेंडुलम के लिए फॉर्मूला होता है 2π√L/g, और यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हो T² इज इक्वल टू 4π² L/g, एंड g इज इक्वल टू, जो g के लिए फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा इट विल बी 4π² L/t²। और यहाँ से अगर आप परसेंटेज एरर इन जी लिखोगे सो डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल टू 4π² में कोई एरर नहीं होने वाला, सो डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस t का स्क्वायर है, सो इट विल बी 2 डेल्टा t बाय कैपिटल T इंटू 100, सो it will be 0.1/25
इंटू 100। यूनिट्स का कोई इशू नहीं होने वाला बिकॉज ये कैंसिल हो जाते हैं यूनिट एक दूसरे से। प्लस 2 डेल्टा टी इज 1/40 and capital T is 50/40 into 100. 40 get cancelled. 50 into 2 4, so it will be 0.4 plus 2 into 2 4, so answer is 4.4% error, option C. Next question, density measurement of a cube, mass, edge and length. so mass में ये error है और length में ये error है, तो मेजर डेंसिटी के मेजरमेंट में है बताना है हमें। सो मास इज 10 plus minus 0.1, so this is delta m, this is mean value of mass, and length is 0.1 plus minus 0.01, so this is delta L, this is L mean. now हमें पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और ये क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम होती है लेंथ क्यूब। सो यहाँ से हम अगर डेल्टा रो बाय रो निकालते हैं, परसेंटेज एरर, यहाँ पे हमें डेंसिटी का मेजरमेंट का एरर निकालना है। सो पहले हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज अगर हमें डेल्टा रो की एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें रो की वैल्यू भी चाहिएगी। तो रो हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, एंड मास इज 10, वॉल्यूम इज, ये हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं डेंसिटी की, वॉल्यूम विल बी 0.1 क्यूब, सो 0.1 क्यूब it will be 1/10 cube or 1000, so it will be 10,000. so value of density is 10,000. now आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू डेल्टा m by m प्लस l की पावर क्यूब है 3 है, सो 3 डेल्टा l by l यहाँ पे हो जाएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा m इज 0.1 डिवाइड बाय 10 प्लस 3 0.01 डिवाइड 0.1। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे इट विल बी 1/100 and it will be 3/110, so 10। now हम इसको एलसीएम लेके फर्दर सोल्व कर सकते हैं, that delta rho by rho equals to, LCM is 1000 and this will be 10 and this will be 30, so not 30, 300, so it will be 310 by 1000। so आगे इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, सो फाइनल वैल्यू हमारे पास जो डेंसिटी में एरर की आएगी इट विल बी 310 into 1000, और जो हमारा ये डेंसिटी की वैल्यू आई थी इट वाज 10 by 0.1 क्यूब, सो इसका हमने 10 ऊपर लेके गए थे 1000 को, सो इट इज 10,000। सो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड एरर विल बी 3100 एंड 20, इट विल बी kg, और जो हमारी यहाँ पे ये डेंसिटी थी हमने ये सेंटीमीटर क्यूब में लिए, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एनी हाउ जो भी हमारा आंसर है वो दैट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, मींस ये 31 है तो इट विल बी 3.1 समथिंग और 0.331 समथिंग कुछ हो सकता है, बट ऐसा आंसर यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ये सभी ऑप्शंस गलत हैं, और जो इसका राइट आंसर होगा किलो केजी सेंटीमीटर क्यूब में ये होगा, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर हमें बताना है। सो A1 यानी कि 1 स्क्वायर का एरिया गिवन है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें ऐसे 7 स्क्वायर्स का एरिया बताना है।
तो उसके केस में हो जाएगा 7 इंटू 5.29 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के केस में कि आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट लेने होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 7 में ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है और 5.29 में ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो बाय रूल आपको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट लेना चाहिए यहाँ पे। सो आंसर विल शुड बी, अगर इसको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाना है तो आंसर हो जाएगा 40, बिकॉज ये 40 के पास है। बट जो 7 है, 7 एक एक्सटर्नल नंबर है, वो मेजरमेंट का पार्ट नहीं है। तो जब आप सिग्निफिकेंट एनालिसिस करोगे तो आप इसको कंसीडर नहीं करने वाले, आप कंसीडर करना होगा ओनली 5.29 को, और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो आंसर विल बी 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 7 के सिग्निफिकेंट को आप इग्नोर करोगे बिकॉज ये मेजरमेंट का पार्ट नहीं था, एक्चुअल मेजरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो सेम सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है और इसमें हमने जी के लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो हम यहाँ पे उस फॉर्मूला को दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। एंड वी नो दैट एरर इन जी आता है डेल्टा जी बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। ये हमारा एरर फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ दिस। और जो फॉर्मूला होता है फॉर योर रेफरेंस, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है। यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल के ये ड्राइव कर सकते हैं इजिली। नाउ अब यहाँ पे आते हैं। सो टाइम टेकन फॉर 20 oscillations is measured by watch of 1 second least count. So तो मीन्स 20 oscillations को जब मेजर किया गया तो उन 20 oscillations के लिए जब हमने क्लॉक को यूज किया उस क्लॉक में 1 सेकंड का एरर था। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन नहीं ली, यहाँ पे हमने 20 साइमल्टेनियस ऑसिलेशन ली है। और जब यहाँ पे टाइम की बात करते हैं हम एक ऑसिलेशन के टाइम की बात करते हैं, और यहाँ पे जब बात हो रही है यहाँ पे 20 ऑसिलेशंस के टाइम की हो रही है। तो अगर 20 ऑसिलेशंस में 1 सेकंड का एरर है तो जो एक ऑसिलेशन होगी उसके अंदर हो जाएगा 1/20 सेकंड का एरर। नाउ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मीन वैल्यू फॉर टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकंड, और ये भी किसके लिए है? 20 ऑसिलेशंस के लिए। मींस 20 ऑसिलेशंस का टाइम 30 सेकंड है तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 30/20 सेकंड, और यहाँ भी सेकंड। नाउ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, लीस्ट काउंट 1 mm। सो जो डेल्टा एल है यहाँ पे गिवन है 1 mm है, और जो लेंथ की वैल्यू है 55 सेंटीमीटर है। एल इज 55 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर। सो वैल्यूज पुट करते हैं। इट विल बी 0.1 बाय 55 बिकॉज सेंटीमीटर दोनों स्केल्स कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 100 ट्वाइस डेल्टा टी इज 1/20, इट इज 30/20 multiply 100, so cancel and this get also cancel, and ये होगा 1 by ये 0.1/55 है, so it will be 1/550, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो it will be 10/55 प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 इंटू 10 20/3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये बहुत स्मॉल होने वाला है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर हम ओनली 20/3 से आंसर निकालें तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 6.67%, और इसके पास आसपास का जो ऑप्शन है दैट इज 6.8%, और कोई ऑप्शन इसके पास है ही नहीं कि हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़े। सो आंसर विल बी 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। तो लीस्ट काउंट गिवन है किसका? मेन स्केल का। It is 1 mm or 1 into 10⁻³ meter. Minimum number of division on a circular scale required to measure 5 micrometer diameter of the wire. So हमें 5 माइक्रोमीटर जो डायमीटर है वो मेजर करना है। तो इस सिनेरियो में
जो आपका लिस्ट काउंट होना चाहिए मीन्स जो आपका सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई उसका लीस्ट काउंट, वो कम आपको कितना देना चाहिए, 5 माइक्रोमीटर वैल्यू कम से कम देना चाहिए। या आपका जो लिस्ट काउंट है वो ऐसा हो सकता है कि वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यूज दे, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन प्रोवाइडेड नहीं है। सो फॉर दिस, हाँ, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिवीजन ही कैलकुलेट करना था, मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन्स। सो वी नो कि सर्कुलर स्केल के अंदर सपोज कीजिए n डिवीजन्स हैं, तो n डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल शुड बी एट लीस्ट 5 माइक्रोमीटर। इतना तो होना चाहिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास 1 रीडिंग आए और उसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 5 निकाल पाओ। इससे छोटी वैल्यू आए तो भी पॉसिबल है कि वर्क हो जाएगा, बट अगर इससे वैल्यू ज्यादा आती है तो वर्क नहीं हो पाएगा। सो इट इज 5 माइक्रोमीटर। सो 5 माइक्रोमीटर को हम पुट कर देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। नाउ फॉर लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, हमें पता है लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल क्या होता है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, जो कि हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन हम ये मान के चलते हैं कि बिकॉज हमें मिनिमम निकालना है तो हम नंबर ऑफ डिवीजन को 1 ले लेते हैं, सो दैट कि सपोज जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 1 है। सो जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका लिस्ट काउंट है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस वैल्यू के, तो यहाँ पे हम n को क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन जो हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज कैपिटल N, एंड इट इज लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल को हमने 1 लेके ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। सो मीटर मीटर यहाँ से n आ जाता है 10⁻³ by 5 into 10⁻⁻6, and it will be 1000 by 5 or 200. Let me explain it again so that अगर स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रह गई हो तो हम उस कंफ्यूजन को दूर कर पाए। सो क्वेश्चन इज कि हमें 5 माइक्रोमीटर की मेजरमेंट लेनी है, और जो मेन स्केल है उसका लिस्ट काउंट 1 इंटू 10⁻³ मीटर है। तो जो हमारी मेजरमेंट है 5 माइक्रोमीटर की, तो वो हम किसके थ्रू मेजर करेंगे, एज यूजुअल सर्कुलर स्केल के थ्रू मेजर करेंगे। तो जो सर्कुलर स्केल है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर स्केल के अंदर जो n होता है मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट इनटू 5 माइक्रोमीटर। ये कौन सा n है जो कंसाइड करता है, मींस कौन से वाली रीडिंग कंसाइड कर रही है सर्कुलर स्केल में। सर्कुलर स्केल में कंसाइड करने वाली रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट इक्वल टू 5 mm। अब हम ये मान के चलते हैं कि पहली ही रीडिंग कंसाइड करती है, सो दैट कम से कम हमें वो मिनिमम वैल्यू मिल सके। तो उस स्केल में अगर यहाँ पे हम n को 1 पुट कर देते हैं तो जो हमारा लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोमीटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल क्या होता है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, और यही नंबर ऑफ डिवीजन हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने इनको n अज्यूम कर लिया, पिच हमें गिवन है जो कि मेन स्केल की वैल्यू है, और लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल हमने यहाँ से निकाला है। इन दोनों को आप एडजस्ट करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एक डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय मीटर स्केल। तो ये डायमीटर है और ये हाइट है, सो वी कैन राइट डायमीटर इज 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हाइट की वैल्यू है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे देखिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, और विद एरर, हमें साथ में एरर भी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ओनली मीन वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम एरर पे जाएंगे।
ऐसा पॉसिबल है कि मीन वैल्यू से ही हमें रिजल्ट मिल जाए और हमें एरर कैलकुलेट करने का जरूरत ही ना पड़े। सो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। सो जब आप इसको सोल्व करोगे यूजिंग पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर है तो इट विल बी डी बाई टू स्क्वायर एच एंड पाई डी स्क्वायर एच बाय 4। वैल्यूज पुट करेंगे और जो हमारे पास कैलकुलेशन करके आंसर आएगा इट विल बी 4262229। और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे हम? पाई डी की मीन वैल्यू दैट इज 12.6 स्क्वायर और बाय 4 इंटू एच, एच इज 34.2। ये जो अभी हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये मीन वैल्यू निकाल रहे हैं वॉल्यूम की। ओके, और एरर अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। सो जब ये कैलकुलेशन करके हमारे पास ये फाइनल आंसर ये होगा। नाउ बिकॉज जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने कैलकुलेशन की थी तो हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, डी की मीन वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। मल्टीप्लिकेशन में हमें कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट देखने होते हैं और एच की मीन वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। तो जो हमारा आंसर है उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और फाइनल आंसर बन जाएगा 4260। तो मीन्स आपकी वॉल्यूम की मीन वैल्यू ये होगी। और अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ओनली आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें 4260 मेंशन है, तो दिस विल बी द आवर फाइनल आंसर और हमें एरर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ओके, और एरर के केस में भी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एरर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं दोनों में, तो आपका एरर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एरर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ऐसे आप आंसर्स को टैकल डाउन कर सकते हो, इजिली राउंड ऑफ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गोज, सो पिच गिवन है 0.5 mm और सर्कुलर डिविजन्स सी डी 100। तो यहाँ से लीस्ट काउंट हो जाएगा इसका, दैट विल बी 0.5 बाय 100 और 0.005 मिलीमीटर। नाउ आगे जाते हैं। व्हेन स्क्रू गोज इज फुल्ली टाइटन्ड, स्क्रू गोज को फुल्ली टाइट किया गया मीन्स वहां पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। अब जो डिवीजन है वो जो जीरो है वो 3 डिवीजन मीन लाइन के नीचे आती है, तो जीरो एरर क्या होगा? जीरो एरर विल बी 3 इंटू 3 डिवीजन पे आती है और लीस्ट काउंट कितना है? 0.005, so it will be 0.015 mm। और उसके बाद नाउ कमिंग टू कि ये जीरो एरर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो डिवीजन बिलो द मीन लाइन मीन्स ये आपकी मेन स्केल की जीरो यहाँ पे है, अगर तो आपकी जो जीरो है इसके नीचे है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये यहाँ पे आपकी सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है, मीन्स आपने 1 2 3 रीडिंग्स आपने एक्स्ट्रा मेजर की है। अगर ये ऊपर होता तो आपने 3 रीडिंग्स कम मेजर की होती, अगर आपने एक्स्ट्रा मेजर की हैं तो आपको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और बिकॉज जीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता, तो इस केस में जीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर ये जीरो नीचे है तो पॉजिटिव एरर, अगर ये जीरो ऊपर है तो नेगेटिव एरर। सो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें मेन वैल्यूज गिवन है कि जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल के रीडिंग्स ली हैं तो हमारी रीडिंग्स आती हैं 5.5 mm और 48 स्केल मैच होती है, सर्कुलर स्केल की 48 मार्किंग मैच होती है। सो 48 मार्किंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल दैट इज 0.005 और माइनस आएगा जीरो एरर दैट इज 0.015 mm। जब आप इनको सॉल्व करोगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.725 mm एंड ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड by measuring it three sides of the cube and its mass. The relative error in measuring of mass and length are 1.5. So percentage में error given है। So delta m by m into 100 is equal to 1.5% and delta L by L into 100 is equal to 1%। एंड हमें बताना है डेंसिटी के अंदर मैक्सिमम एरर बताना है और सभी एरर परसेंटेजेस में है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम और क्यूब है, सो क्यूब की वॉल्यूम होती है एल क्यूब। सो यहाँ पे एरर बन जाएगा डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल और यहाँ पे पावर 3 है, सो 3 आ जाएगा इंटू 100। सो इसकी वैल्यू है 1.5% प्लस 3 इंटू डेल्टा एल इंटू 100 की वैल्यू है 1%। सो इट विल बी 3 प्लस 1.5 और 4.5% will be the final answer. Next question. So यहाँ पे ये this question is quite easy as compared to previous ones. तो अगर हम डायरेक्ट एरर लिखें so it will be delta a by a equals to 3 delta p by p plus 2 delta q by q plus r के ऊपर अंडर रूट है so half delta r by r प्लस डेल्टा एस बाय एस। सो और ये सभी परसेंटेज एरर हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सभी 100 से मल्टीप्लाइड है। सो 3 डेल्टा पी के अंदर जो एरर है दैट इज 0.5%, क्यू के अंदर जो एरर है वो 1% का है प्लस आर के अंदर 3% का एरर है एंड प्लस जो एस है उसके अंदर 1.5% का एरर है। सो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से फिर से 1.5 आएगा और यहाँ से 1.5। सो इट इज 4.5 प्लस 2 6.5% एरर हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ अराउंड इज 10⁻⁻²। तो पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखिए गिवन है और पीरियड ऑफ सैटेलाइट किस क्या होता है टाइम। तो टाइम के अंदर रिलेटिव -2 का एरर है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी मींस ये जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा टी बाय टी। नाउ रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, सो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 0 है। सो ये बताना है रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द मेजर मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ के लिए हमें बताना है कि अर्थ के मास में कितना एरर होगा। तो ये आपके ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर होता है जो वहां से लिया गया है। वहां पे हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और ये प्रोपोर्शनलिटी जब आप हटाते हो तो ये एक्चुअल फॉर्मूला जो बनता है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब बाय जी एम। तो अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर लोगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर 2 पाई आर क्यूब बाय जी एम। और यहाँ से अगर आप एरर लिखो दोनों साइड के, बिकॉज हमें पता है ओनली टी और मास में एरर है, सो ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई और आर क्यूब में कोई एरर नहीं है, ओनली जी कांस्टेंट होता है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, ओनली एम में एरर है। इट विल बी डेल्टा एम बाय एम। सो मास के अंदर जो एरर आएगा वो ट्वाइस ऑफ एरर आएगा टाइम के। टाइम का एरर है 10⁻², सो इट विल आंसर इज 2 इंटू 10⁻², ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। The relative error in determination of the surface area of a sphere is alpha. Surface area के अंदर relative errors means dA by A और आप इसको डेल्टा A लिख सकते हो। डेल्टा A by A is equal to
अल्फा। सो वॉल्यूम के एरर में बताना है कि वॉल्यूम के अंदर कितना एरर होगा। सो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्फेयर की बात कर रहे हैं। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, या हम इसको ए भी लिख सकते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे ए यूज कर लिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे एरिया में एरर निकालें तो डी ए बाय डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाय आर, बिकॉज 4 पाई में कोई एरर नहीं होने वाला और इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज अल्फा, implies 2 delta r by r is equal to alpha, means delta r by r is equal to alpha by 2. Now हमें relative error in volume कैलकुलेट करना है। So volume is 4 by 3 pi r cube, implies delta v by v is equal to 3 delta r by r, और आप वैल्यूज पुट करोगे r by r की alpha by 2, so आंसर आ जाएगा 3 alpha by 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a screw gauge, 5 complete rotation of screw causes linear movement of 25 centimeter. Means 5 रोटेशन में मूवमेंट होती है 0.25 सेंटीमीटर की, और ये कहाँ पे हो रही है, मेन स्केल पे हो रही है। तो एक रोटेशन में कितनी मूवमेंट होगी, 25/5 और 0.05 सेंटीमीटर। और जो एक रोटेशन की मूवमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, पिच। सो पिच हो गई 0.05 सेंटीमीटर। नाउ there are 100 circular divisions, तो circular division CSD are 100, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स और 0.05 बाय 100 सेंटीमीटर, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको हमने लिख लिया 5 इंटू 10⁻⁻2, और ये 100 ऊपर गया तो -2 फर्दर 5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट आ गया। अब आते हैं आगे। द थिकनेस ऑफ वायर मेजर्ड बाय दिस स्क्रू गेज गिव्स रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिविजन्स। तो हमारे पास 4 मेन स्केल डिवीजन है एंड 30 सर्कुलर स्केल्स हैं, 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। नॉर्मली क्या होता है कि हमें मेन स्केल डिवीजन की फॉर्म में वैल्यू नहीं गिवन होती, हमें यहाँ पे सीधा गिवन होता है कि 0.4 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर, पर अब की बार 4 मेन स्केल डिवीजन में वैल्यू गिवन है। तो हमें ये पता है कि एक रोटेशन पिच के बराबर होती है और पिच एक मेन स्केल के बराबर होती है। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 4 इंटू जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो आप पिच को, 0.05 सेंटीमीटर प्लस 30 स्केल मैच करती है, तो 30 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल दैट इज 30 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सो सोल्व करते हैं इनको। यहाँ से हमारे पास आएगा 0.20 प्लस, और ये सब सेंटीमीटर में है, 150 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और इट विल बी 0.0150 सेंटीमीटर। और जब आप इनको ऐड करोगे आंसर आएगा 0.2150 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड। डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, और ये टी गिवन है। द पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन, ये हमें बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो टी है, जो सरफेस टेंशन है, इसका फॉर्मूला गिवन है RHG/2। अगर आप यहाँ से एरर कैलकुलेट करते हो सो इट विल बी डेल्टा टी बाई टी, यानी एरर इन सरफेस टेंशन इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच प्लस डेल्टा जी बाय जी। ये पॉसिबल एरर हो सकता है वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए।
नाउ अगर आप फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो फॉर्मूला के अंदर जो जी है, जी को मेजर नहीं किया गया। जी को ऑलवेज यूज किया जाता है, मोस्टली जी को मेजर नहीं किया जाता। अगर जी को मेजर किया जा रहा है तो फिर बाकी चीजों की वैल्यूज ली जाती है, उस चीज उसमें जी को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जी को कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, सो जी के अंदर कोई एरर नहीं होगा, तो ये टर्म रिमूव हो जाएगी। और अब हम देखते हैं जो हमारे पास ये मेजरमेंट्स हैं, हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो हमारी डी की वैल्यू है, इट इज 1.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10⁻⁻2 मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर्स, यानी कि 1.25 सेंटीमीटर ये वैल्यू है। अगर आपको ये वैल्यू को मेजर करना है तो जो आपके पास वो होना चाहिए, जो आपका स्केल होना चाहिए वो यहां तक मेजर कर सके। मींस उस स्केल के अंदर जो मार्किंग है वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो इस डिवीजन को भी मेजर कर सके। और उसकी सबसे कम डिवीजन क्या होगी, 0.01 सेंटीमीटर। और अगर आप 0.01 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 0.1 mm, मींस उस स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है 0.01 mm होनी चाहिए, तब जाके वो इस वैल्यू को मेजर कर सकता है। लेट मी रिपीट इट अगेन। हमें डायमीटर की वैल्यू ये गिवन है और इसको हमने मेजर किया है किसी स्केल की हेल्प से, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज -2 मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आ गई 1.25 सेंटीमीटर। अब आपको एक ऐसा स्केल चाहिए जो इस वैल्यू को मेजर कर सके। तो उस स्केल की जो मिनिमम रीडिंग होगी, जो मिनिमम वो पॉसिबल मेजर करता है एक्यूरेटली, दैट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। इससे नीचे की वैल्यू एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। ओके, तो अगर वो इस वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है तो दिस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है नॉर्मली, कि जो वैल्यू आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, कम से कम वो वैल्यू जो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेल्टा, या अगर आप यहाँ पे आर ले रहे हो या डेल्टा एच ले रहे हो, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.01 सेंटीमीटर। सो कमिंग बैक टू द फॉर्मूला डेल्टा टी बाई टी, और यहाँ पे हम हमारे पास रेडियस की फॉर्म में और यहाँ पे हमारे पास डायमीटर की फॉर्म में, तो हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय ट्वाइस ऑफ आर इक्वल टू डेल्टा एच बाय एच, तो ये हो जाएगा एरर इन डायमीटर बाय डायमीटर इनटू प्लस एरर इन हाइट बाय हाइट। नाउ जब 2 इंटू डेल्टा आर कर रहे हो आप, तो ये एरर डबल नहीं होता, बिकॉज जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू उतनी ही रहती है। तो चाहे आप उससे डायमीटर मेजर करो तो अब भी उसमें इतना ही एरर आएगा, चाहे आप उससे रेडियस मेजर करो तब भी उसमें इतना ही एरर आएगा। सो डायमीटर के लिए अंदर एरर हो गया 0.01 सेंटीमीटर, और जो वैल्यू है डायमीटर की इट इज 1.25 सेंटीमीटर, प्लस जो हमारे पास हाइट है दैट इज 1.45, और इसका एरर भी वही होगा 1.45। इसको आप लिख सकते हो 1/125, और इसको लिख सकते हो आप 1/145। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट आएगी 0.015, और बिकॉज हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5% समथिंग, और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एरर कैलकुलेशन करना है और ये रिलेटिवली इजी है, तो हम डायरेक्ट अगर एरर लिखें, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 इक्वल टू ए की पावर यहाँ पे हाफ है, हाफ डेल्टा ए बाय ए 100 प्लस बी का स्क्वायर है, 2 डेल्टा बी बाय बी 100 प्लस सी के लिए 3 है, डेल्टा सी बाय सी 100, एंड डी के लिए -4 है, बट हमें ऑलवेज मैक्सिमम लेना होता है, प्लस ही लेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ ए के अंदर एरर है 2% का, बी के अंदर 1% का, सी के अंदर 3% का, और डी के अंदर 5% का। इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20, 11 12 32।
तो 32% का एरर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60। सो एक स्क्रू गेज विद पिच गिवन है 0.5 mm, सर्कुलर स्केल में डिवीजन है 50, सो CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। सो लीस्ट काउंट आ जाएगा सर्कुलर स्केल का, जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट पिच ही होता है, या 1 रोटेशन के अंदर का डिस्टेंस जो सब पिच ही होता है, दैट इज 0.5 mm। सो लीस्ट काउंट का सर्कुलर लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इज 0.5 mm by 50 or 5 by 500 or 1 by 100 mm. Now, before starting the measurement, it is found that when two jaws of screw gauge are brought to into contact, means जब दोनों jaws को एक दूसरे के साथ में लाया गया है, तो 45th division coincide with the main scale line। तो अगर यहाँ पे मेन स्केल लाइन है, ये 0 है मेन स्केल लाइन का, तो इसके साथ 45th आती है, ये 45th है। एंड 0 ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, मेन स्केल की 0 विजिबल नहीं है। मींस क्या होगा कि जो 0 है वो पीछे की तरफ है, बैक साइड में है, यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो इस केस में जब हम लिस्ट काउंट निकाल रहे होंगे, पहले तो बिकॉज लिस्ट 0 विजिबल नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, या तो 50 यहाँ पे होगा, बिकॉज इसके अंदर मैक्सिमम 50 कितनी है, 50 डिविजन्स है, या तो 50 यहाँ पे होगा या 50 यहाँ पे होगा। तो जो आप एक्सेस चले हो यहाँ पे, और 50 और 0 एक ही होता है, बिकॉज यहाँ पे 50 डिविजन्स है, बिकॉज 0 और 50 एक ही है, तो यहाँ पे जो शिफ्ट है वो 5 डिविजन्स का है। मींस जो 0 एरर होगा वो 5 डिविजन्स का एरर होगा, 5 into 1 by 100 और 5 by 100 mm। नाउ कमिंग टू कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो व्हेन जब आपको ये मेंशन हो कि 0 विजिबल नहीं है, मींस 0 पीछे की तरफ है, मींस आपने लेस मेजर किया है। सो इन दैट सिनेरियो जो आपकी 0 विजिबल नहीं है, तो आपने लेस मेजर किया है। लेस मेजर का मींस आपको वैल्यू वापस ऐड करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि 0 एरर को ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐड करना है तो आपको नेगेटिव ऑफ नेगेटिव करना पड़ेगा, मींस ये जो 0 एरर होगा ये नेगेटिव होगा। और आप यहाँ से ये जस्ट रिमेंबर रख सकते हो कि अगर 0 विजिबल नहीं है तो नेगेटिव 0 एरर होगा। सो 0 एरर इज नेगेटिव। हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम आगे, जब हम थिकनेस मेजर करेंगे तो ये मेंशन है कि मेन स्केल पे आता है 0.05 mm प्लस 25th डिवीजन कंसाइड करती है, सो 25th into least count, that is 1 by 100 mm। और यहाँ पे 0 एरर नेगेटिव है, सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5 by 100 mm। सो 0.5 mm प्लस 25 by 100 mm, और ये प्लस हो जाएगा 5 by 100 mm। सो इट विल बी 30 by 100, और ये mm में है, प्लस 0.3 mm। सो फाइनल आंसर विल बी 0.08 mm। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो मेन चीज है दैट यहाँ पे मेंशन है दैट 0 ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। मींस जो 0 है वो पहले आई थी और फिर उसको क्रॉस करके जा चुकी है। अगर 0 यहाँ पे आ रही होती तो हमें विजिबल होती, बट 0 उसको क्रॉस करके जा चुकी है, पीछे की तरफ जा चुकी है। मींस इतना अमाउंट आपने लेस मेजर किया। अगर आपने लेस मेजर किया मींस आपको ऐड करना पड़ेगा उसी अमाउंट को, और वो किस सिनेरियो में होता है, नेगेटिव 0 एरर के केस में। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और हमारे पास इसके अराउंड अभी 15-16 क्वेश्चन और पेंडिंग है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, और उसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो
एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको ये कंटेंट बेटर लग रहा हो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियोस. एंड इफ यू कैन सपोर्ट अस फाइनेंशियली बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, और ये QR कोड आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा. आपकी इस हेल्प से हमें बेटर बुक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर परचेज करने में मदद मिलती है. उससे हम आपके लिए और भी बेटर वीडियो लेके आ पाएंगे. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर with your friends, and subscribe to our channel. With this, thanks for watching. We will meet in our next video.